क्यों खालिको मखलूक में हायल रहें पर्दे, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो. Why should there be barriers between the creator and his creation? Remove the clergy from the church. He walked over the sanctimony of the priest and sought to tear apart the clergy's cloak that stood between the believers and divinity. Iqbal focused on the realization of self, championed the cause of taking charge of one's own destiny, and inspired humanity for action as the only solution to its problems. The armchair philosophers were reconciled to their lethargic thought. They had brought themselves to believe that life is a mystery beyond human capacity to extricate. It is this defeatist mindset and overbelief in destiny that prompts Iqbal here to question, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी. You think life is a mystery? It's only the desire to soar. As the American philosopher Ralph Waldo Emerson said, life is a journey, not a destination. Iqbal compares life with an unending journey towards perfection. Faqat ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी. Iqbal also beautifully untangles himself from the armchair discussions on the origin of humans in Darwin's theory. He says, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है? What do I ask men of reason what my origin is? खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है. Iqbal tries to pull the nation out of inertia and draws its attention to the limitless scope for rise and progress that lies ahead of an aspiring human soul. जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ. जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ. जुए शीरो तीशो संगे गिरा है जिंदगी. Kohkan literally means mountain digger. Here it refers to the famous character Farhad, who, according to the Persian love story, was given an impossible task to perform. He was asked to dig a mountain and bring out a river of milk to deserve being married to Shirin. And Farhad did so. Inspired by his love tale, Iqbal defines life. He says, Zindagani ki haqiqat कोहकन के दिल से पूछ. If you want to know the truth about life, ask a mountain digger. जुए शीरो तीशो संगे गिरा है जिंदगी. Life is nothing but a huge mountain, a rock cutter, and the stream of milk. Goethe said, life is action, not contemplation. Contemplation is the precursor to action. Once an idea is thought through, it is action that matters. Tennyson said, there's not to make reply, there's not to reason why, there is but to do and die. नहीं तेरा गुजर कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन फक्रे, thank you for correction, कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में. Qasr is palace, Sultani is imperial, royal, Gumbad is tomb, and Shaheen, the peregrine falcon. You're not meant to live in the tombs of kings' palaces. And which is the bird that lives in the tombs? It is the pigeons. Despite its many beautiful qualities, pigeon is known to be a weak-hearted bird. Even the sound of an explosion is enough to kill it. So what Iqbal says is, you're not meant to live in the tombs of kings' palaces. You are a high-flying falcon, and your abode is
the mountainous rocks. Shaheen is a particular type of falcon called the peregrine falcon that flies the highest, lives in mountains, eats its own prey. If it fails to find prey, it eats stones, but doesn't touch others' prey. Fakat zauke parwaz hai zindagi. What a powerful sher. This sher is from Iqbal's epic poem Sakinama, which again deals with selfhood, the essence of Iqbal's psycho-philosophical doctrine of human glory, around which his entire poetry revolves. The air in the early 20th century was filled with death, doom, and despair. The First World War had just ended. The colonial oppression was deep-rooted. New ideas were emerging that challenged conventional wisdom and posed a threat to people's socio-religious identity. Marx had sought to blow apart the belief in God and the supremacy of the elite. Darwin tried to uproot the idea of God as man's creator. Drawing room discussions and debates on emerging ideas were common, which threw the nation into a state of inertia. Despondency had turned human attention to God for help. Iqbal, through his uplifting philosophy of selfhood, turned man's attention from divine to human, blew up superstitious beliefs, raised a priest's control over religion to the ground. He wrote, "Kyun khaliqo makhluq mein hail rahe parde? क्यों खालिको मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो." Why should there be barriers between the creator and his creation? Remove the clergy from the church. He walked over the sanctimony of the priest and sought to tear apart the clergy's cloak that stood between the believers and divinity. Iqbal focused on the realization of self, championed the cause of taking charge of one's own destiny, and inspired humanity for action as the only solution to its problems. The armchair philosophers were reconciled to their lethargic thought. They had brought themselves to believe that life is a mystery beyond human capacity to extricate. It is this defeatist mindset and overbelief in destiny that prompts Iqbal here to question, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी. You think life is a mystery? It's only the desire to soar. As the American philosopher Ralph Waldo Emerson said, life is a journey, not a destination. Iqbal compares life with an unending journey towards perfection. Fakat zauke parwaz hai zindagi. Iqbal also beautifully untangles himself from the armchair discussions on the origin of humans in Darwin's theory. He says, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है? What do I ask men of reason what my origin is? खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है. Iqbal tries to pull the nation out of inertia and draws its attention to the limitless scope for rise and progress that lies ahead of an aspiring human soul. जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ. जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ. जुए शीरो तीशो संगे गिरा है जिंदगी. Kohkan literally means mountain digger. Here it refers to the famous character Farhad, who, according to the Persian love story, was given this bird. Iqbal has used a Shaheen as a symbol of exceptional strength, proud self-reliance, and undying aspiration. Iqbal basically advocates daredevilry, getting out of the comfort zone. That is critically important to be able to face the challenges of life.
He calls upon his readers to be brave, fearless, tough, and aspirational. So, those were the couplets that I selected for explanation. If time allows, I can continue with the ghazal. This ghazal has already been recited by Humaira Saeed in her introductory speech. A very, very simple but extremely inspirational ghazal. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, कनाअत न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फुगा और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमानो मकां और भी हैं, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं. This immensely inspirational poetry of Allama Iqbal is a musalsal ghazal. Ghazals comprise multiple couplets, and each couplet in general carries its own thought, which does not necessarily relate to the thought or feeling in other couplets. A ghazal is said to be musalsal or continuous when it revolves around a central theme and each of its couplets deals with or expands upon the same thought. As part of his central idea, Iqbal here says that what is perceptible as the reality of universe is not the only reality that exists. There is much more to the truth of the universe than what we know. This idea of Iqbal gets ratified as we continue to uncover its truth through our ongoing research in every sphere of knowledge. Our astronomical research leads us to discover new stars, planets, and galaxies. Just last week, there is a news that the astronomers have discovered a new planet that is very similar to planet Earth, and they are extremely hopeful that its discovery will resolve most of the issues that planet Earth faces, like overpopulation, global warming, and so forth. A few months ago, human cell research has brought us close to a breakthrough in next generation sequencing technology, helping both in early diagnosis and targeted treatment of cancer by identifying mutational signatures in individual patients. The major underpinning of Iqbal's message is that one should not consider the reality of life as one observes, understands, and knows at a given point in time to be the ultimate reality. With passage of time and evolution of human thought, new dimensions to what we know as the reality continue to unravel. He says that there are many more realities of life that are currently beyond human comprehension, that lie shrouded in mystery, waiting to be uncovered through sheer human endeavor and inquisitive human passion. The ghazal, crafted and woven in an inspiring tone, brings home to the reader the truth that failures in one front are not meant to dishearten us, they are rather meant to inspire us to put in greater effort to succeed. सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. Sitare here represents the world we live in, a world of our current experiences, a place that is seemingly high and lofty. Jahan refers to that part of the world that is yet unexplored. Ishq ke imtihan signifies the test of passion and aspiration. Iqbal points out that there is more to be explored, understood, experienced, and enjoyed that lies beyond the stars, the world of our current experiences. Those stars are what we already consider to be lofty and beyond reach.
As humans, we need to be prepared to face many more arduous and exacting tests of our passion to uncover what is yet to be explored. तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं. तही is empty or devoid. Faizan, here it means world. Sorry, Fiza. Fiza here means world or universe or what is perceptibly in existence. The universe that we live in is not devoid of life and the countless opportunities it offers. There are myriad caravans journeying through it parallelly. यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं. The poet here treats man as the supreme creation and indicates that there is a huge number of creatures subservient to him who are also living parallelly in the same ecosystem. Among those are some that we know, but also many that we do not. It is up to us to explore the opportunities that these myriad caravans of life offer, discover them, experience them, and be inspired by them. The Sher, like all others, is a clarion call for humans to look beyond the self-imposed confines of their thought and vision, identify the immeasurable ocean of opportunities, and thus live a fuller and more vibrant life. Iqbal, a philosopher, understood the limitless expanse of the universe that lies beyond human comprehension and reach. The science of cosmology, both physical, i.e. astronomy and particle physics, and metaphysical, which is philosophy of physics, agrees that the data it has managed to put together proves that we know little of the universe we live in. Iqbal's genius of a trained metaphysicist and philosopher expands upon this scientific reality further. Through his poetic imagination, he paints a picture of multiple caravans of life passing through this mesmerizing landscape we call universe, and reminds his readers to be aware of the avenues of opportunities that lie ahead. Qanaat न कर आलमे रंगबू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं. Qanaat is contentment. Alame Rangobu, the world of color and fragrance, meaning the blooming garden of life we live in. And Chaman, which means garden, signifying the world hereafter, a theological reality that most religions believe in. Ashiya is the nest or abode. The poet here equates the world we live in with the blooming, colorful, and fragrant garden of life and asks us not to be contented with its beauty. He suggests that we don't need to be caught up by the beauty of this world because there is a world hereafter that is more beautiful, more rewarding, and everlasting, thus inspiring us to prepare for it. अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहो फुगा और भी हैं. The poet, in his attempt to motivate the reader, says that failure to achieve a goal, no matter how prime and paramount, shouldn't dishearten and dismay us. There is a terrific world of possibilities ahead. We will be made to encounter greater challenges, face bigger disappointments, providing more room to wail and cry. But that is not what we are made for. We have to maintain our composure, keep our head cool, nurture the warmth at heart, muster the courage, gather the strength, and move ahead with greater vigor and vitality. Failure is when you accept it. तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. The poet compares his readers to his ideal bird Shaheen, which is a unique symbol of inspiration, power, selfhood, self-dependence, and is celebrated by Iqbal throughout his poetry. The symbol is recognized to be so powerfully inspiring that many locales and people in the subcontinent are named after it, and the bird's effigies are installed in many places. The bird flies high, as we said, doesn't build a nest, lives in rough and rocky mountains, lives on its own prey,
It is seen either staying hungry or eating stones if it fails to find its prey. Iqbal says that, like Shaheen, our job is to rise high into the skies, irrespective of the challenges that confront us. If we are robbed of one space, one horizon, or one sky, we should look forward to the other. But fly we must. Yet again, the poet tries to bring home the point that nothing is a destination. Every new destination we explore and reach is a mere milestone. The destination lies beyond the point we manage to reach, no matter how high. इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं. The poet, in his soaring ambition to explore the universe beyond all limits, dissuades his readers from getting caught up within the confines of the world they live in. Here again, the poet either points to the vast and unexplored areas of life or refers to the hereafter. Through his importunity, he tries to prevail upon his readers the need to bear in mind that there are many more times and spaces beyond what they perceive to be their world. He advises the reader to rise above the pettiness of his perceived world and take over the vast avenues of what remains undiscovered. गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं. Gone are the days when I was alone in the assembly of people, but now I have my confidants here. This concluding couplet of the ghazal has a different context to it. Iqbal, who was a philosopher and a person of immense foresight and deep thought, was seriously concerned at the socio-economic and socio-political events of his time. He was angry at the British imperialists, disillusioned by the shallowness of Western culture, outraged at the rich-poor divide, and dismayed at the inability of his people to understand and foresee times to come. He had a burning desire to bring about a positive change in the community's thought. The apathy and indifference of his people disturbed him and distressed him a lot. His agony stands conspicuously out in many of his poems. After years of effort to wake the society up from its slothful indifference, the poet's work seems to have started to find some resonance. The people not only started to appreciate the profoundness of his counsel, but also come close to him like his confidants. Iqbal expresses his relief and happiness at the change and feels that he is no longer alone, but amidst an assembly of people who value his work and his counsel. Shukriya. बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब. अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन. अल्लामा इक़बाल की यही कोशिश जो वो ख़ुदी की शक्ल में अपनी शायरी के ज़रिए पेश करते हैं, ज़हीर साहब ने उसको यहाँ पर पेश किया आपके सामने. अल्लामा इक़बाल ख़ुदी के साथ साथ इश्क़ अमल के साथ साथ दिल की भी बहुत बात करते हैं और वो चाहते हैं अक्ल से ज़्यादा अहमियत दिल की होती है. इसीलिए कहते हैं, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो. लेकिन इंसान हमेशा अक्ल की कसौटी पर हर चीज़ को खोजने की कोशिश करता है. इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी रंग और नूर से भरी कायनात उसे मिली है, फिर भी उसे शिकवा है. तो अल्लामा इक़बाल का ही जो कलाम है, शिकवा जवाब शिकवा की सूरत में, उसी से मुंतखबा कुछ अशार आपके सामने पेश करने के लिए यहाँ आएंगे डॉक्टर जावेद कमाल और लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब. डॉक्टर जावेद कमाल रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के रह चुके हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे एंकर हैं. और उनके साथ लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब जो शायर हैं, उनकी शायरी भी हम कभी ना कभी सुनेंगे. अभी ये आपके सामने पेश करेंगे शिकवा जवाब शिकवा से कुछ हिस्सा. सदर जलसा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आम तौर पर मेरे सामने अक्सर माइक्स बंद हो जाते हैं क्योंकि मैं बग़ैर माइक के बोलने का आदी हूँ. बहरहाल
मोहतरमा मेरी करम फरमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है लक्ष्मी देवीराज साहिबा, और सामने मोहतरमा अनीस आयशा साहबा हैं और प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा हैं, और इसके साथ साथ आप तमाम हैं। आमिर भाई भी मौजूद हैं और फरहान साहब भी हैं। आप तमाम को देखकर थोड़ी सी हिम्मत बंधी कि चलो कुछ सुना देते हैं आप लोगों को। अल्लामा इकबाल के बारे में प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा ने बहुत अच्छा मजमून पढ़ा। फिर उसके बाद जनाब ज़हीर साहब ने अंग्रेज़ी में बहरहाल उनके अशार की तशरीह की। मैं महसूस कर रहा था कि अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो इंस्पिरेशन वाली शायरी है। मायूसी और नाउमीदी तो मीर तकी मीर के पास मिलती है, लेकिन उनके पूरे लेक्चर के दौरान में शायद आप लोगों ने तालियां बजाना भूल गए थे। मैं जिस एरिया से आता हूं वहाँ पर जो उर्दू प्रोग्राम्स होते हैं, शायरी समझ में आए ना आए तालियां बजाते रहते हैं वो लोग। इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि माहौल में थोड़ी सी गर्मी या हरारत पैदा हो जाती है और शायर या अदीब को थोड़ा सा हौसला भी मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हम दोनों जो शिकवा जवाब शिकवा से अशार पढ़ने जा रहे हैं, अगर कोई बंद आपको अच्छा लगे तो तालियां ज़रूर बजाइए ताकि फिर आने की मुझे हिम्मत पैदा हो जाए। कोई साहब खड़े रह के बहुत धुआंधार तकरीर कर रहे थे और तकरीर ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मजमे में से एक आदमी डंडा लेकर उठा तो वो साहब परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई बस बस मैं भी ख़त्म कर दे रहा हूँ तकरीर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप तो हमारे मेहमान हैं, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जो आपको यहाँ पकड़ कर लाया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा सईद मुतासिर हो जाए। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1873 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए 1873 को, और उनका इंतकाल 21 फरवरी 1938 21 फरवरी 1938 को उनका इंतकाल हुआ। शायर मशरिक़ थे, पूरी मशरिक़ की उन्होंने नुमाइंदगी की और बहुत खूबसूरत शायरी उन्होंने की है, और अपनी शायरी से समाज के हर तबके को उन्होंने मुतासिर किया है। बच्चों के लिए भी उन्होंने नज़में लिखी, बहुत नौजवानों के लिए भी लिखी उन्होंने, बुज़ुर्गों के लिए भी लिखी उन्होंने, मुसलमानों के लिए लिखी, हिंदुओं के लिए लिखी, सिखों के लिए लिखी, सभी के लिए उन्होंने शायरी की है। इसीलिए जब उन्हें अंग्रेज़ सर का खिताब देना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि मुझे सर का खिताब देने से पहले मेरे उस्ताद को आप खिताब दीजिए, तभी मैं सर का खिताब कबूल करूँगा। उनके उस्ताद का नाम था सैयद मीर हसन। तो अंग्रेज़ मजबूर हो गए, उन्होंने सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया। उसके बाद ही इकबाल ने अपने लिए सर का खिताब कबूल किया। तो ये बहरहाल इकबाल थे, नाम भी इकबाल था, उनका कलाम भी इकबाल है। शिकवा जवाब शिकवा, ये 1911 ईस्वी में शिकवा नज़्म लिखी गई और उसके 2 साल बाद 1913 में जवाब शिकवा लिखी गई। इसमें करीब करीब 30-32 बंद एक एक नज़्म में है, और इस नज़्म का जो फॉर्मेट है वो मुसद्दस कहलाता है, यानी 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद, इसको मुसद्दस कहा जाता है। और उर्दू शायरी में अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा जवाब शिकवा और अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़्म है मद्दो जज़र इस्लाम, जिसे मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। ये 2 नज़में मुसद्दस की शक्ल में बहुत मशहूर हैं। मुसद्दस हाली के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि मैं मरने के बाद अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा, जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि तुम दुनिया में क्या कारनामा अंजाम देकर आए हो,
तो मैं कहूँगा कि मैं हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर आया हूँ। तालियां बजाइए आप, ताकि फिर मुझे एहसास हो कि मैंने अच्छी बात कही है। बेहद शुक्रिया। अल्लामा इकबाल के बहुत सारे शेर ज़रबुल मिसल की हैसियत रखते हैं, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा ने अपने मजमून में, और ज़हीर साहब ने भी बहुत से खूबसूरत अशार रखे जो ज़रबुल मिसल की हैसियत रखते हैं। और आम तौर पर लोग जो मुक़र्रिरीन होते हैं, जो सियासी लीडर, जो मजहबी लीडर्स होते हैं, रहनुमा होते हैं, अपनी तकरीरों में, अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए अल्लामा इकबाल के शेर जो है कोड किया करते हैं। तो बहरहाल आइए मैं एक फ़नून लतीफ़ा उनकी एक नज़म थी, उसका एक शेर आपसे कहकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। फ़नून लतीफ़ा, फ़ाइन आर्ट्स, अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी, उसमें बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने कहा है कि फ़न जो होता है वह ऐसा होना चाहिए, दिल पर असर करने वाला होना चाहिए। उसका एक आखिरी शेर फ़नून लतीफ़ा का उन्होंने कहा था, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं क़ौमें, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं क़ौमें, जो ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वह हुनर क्या। हुनर ऐसा ही होना चाहिए जो ज़र्ब कलीमी का काम करे, चाहे वो शायर हो, चाहे संग तराश हो, चाहे मुसव्विर हो, चाहे कोई और हो, उसका फ़न ऐसे ही होना चाहिए कि वो ज़र्ब कलीमी की हैसियत रखता हो। बहरहाल आइए शिकवा जवाब शिकवा से चंद मुंतखब बन हमने यहाँ अपने लिए चुने हैं पढ़ने के लिए। शिकवा के जो बंद हैं वो लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब पढ़ेंगे मेरे साथ, और मैं जो है जवाब शिकवा का जो है बंद पढ़ूँगा। लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब भी एक तंज़-ओ-मिज़ाज के मशहूर शायर हैं, उन्हें मखमसे में डाल दिया हो मेरा सही नहीं है संजीदा नज़म पढ़ने के सामने के रखे सफ़ात, लेकिन इसको भी बहुत अच्छे अंदाज से वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरुआत करते हैं शिकवा से। आदाब सामईन मोहतरम, मैं कलाम इकबाल शिकवा पढ़ने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ ख़ताओं से आपको शिकवा रहेगा, बड़ेल मेरा हौसला बढ़ाइएगा। आइए जी। क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महव ग़मे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूँ, जुर्रत आमोज़ मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, खुद से असल है रिफत पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुज़र रखती है, इश्क था फितनागर वो सरकश वो चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लए बेबाक मेरा। है बजा शेवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, क़िस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ऐ खुदा शिकवे अरबाब वफ़ा भी सुन ले, हो गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्श बरी हैं कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात, शुक्रिया कदीम, बेहद शुक्रिया। भूलता ज़ेब चमन पर ना परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ऐ साहिब अल्ताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरी महबूब की दीवानी थी। फरिश्तों को भी हैरत कि आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की
तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मी कैसे हैं, शूख व गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। खुगरे पै करे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, क़ुव्वत बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रुमूज़ कम है, हाँ मगर इसके असरार से ना महरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। थे हमी एक तेरे मारा का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। आई आवाज़ गम अंगेज है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शोक ज़बा है दिले दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ये क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाह वाह। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला-रू हो के ज़मी बोस हुए कौम हिजाज। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तब आज़ाद पे क़ैद रमज़ां भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। महफिले कौन मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो। बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नुए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही
मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्जत वाले भी हैं, मस्त में पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अख्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मुनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। वाह, ये शिकायत नहीं है उनके ख़जाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। खैर तो ये है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादे हूर। अब वो अल्ताफ़ नहीं हम ये इनायात नहीं, अब वो अल्ताफ़ नहीं हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली से मदारात नहीं। क्या कहा, बहरे मुसलमान है फ़कत वादे हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिर हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर खसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब। तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हबाब, रह रोए दश्त हो सीली ज़दे मौजे शराब। ताने अग़यार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने की इवज़ है। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम क़ार हुए तारिके कुरान होकर। बनी अग़यार की अब चाहिए वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख़याली दुनिया। हम तो रुख़सत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर ना कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साक़ी ना रहे जाम रहे। तुम हो आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम, तुम ख़ताकार व ख़ताबी वो ख़ता पोश व करीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुक़ीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे क़ल्ब सलीम। तख्त मग़फ़ूर भी उनका था, शरीर के भी यूं ही बातें हैं कि तुम में वो हमियत है भी। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी ना थे और निकाले भी गए। आए उशाक गए वादे फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूर व खुददार, तुम उख़ुव्वत से गुरेज़ां वो उख़ुव्वत पे निसार। तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बकनार। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़े हस्ती पे सदाकत उनकी। बुए गुल ले गई बैरूने चमन राजे चमन, क्या क़यामत है कि ख़ुद फूल हैं गम्माज़े चमन। अहद गुल ख़त्म हुआ टूट गया साजे चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परवाज़े चमन। एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। मिस्ल बू क़ैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्ते बरदोश हवाए चमनिस्तां हो जा। है तंग माया तू ज़र्रे से बयाबा हो जा, नगमे मौज से हंगामे तूफ़ान हो जा। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।
लुत्फ मरने में है बाकी न मज़ा जीने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दगी से शिकवा जवाब शिकवा की पेशकश यहाँ पर की गई। डॉक्टर जावेद कमाल और जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ ने शिकवा जवाब शिकवा का कुछ हिस्सा यहाँ पर पेश किया। अब इस शिकवे का ये जवाब सुनकर अब इंसान में हिम्मत कहाँ। बस हम यही कह सकते हैं, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो चलिए नए ज़माने की ही बात करते हैं। इकबाल की उर्दू हमने सुनी और आज भी उर्दू के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं और उर्दू ज़बान का जादू ही है जो हम सबको जोड़ कर रख रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक मेहमान हैं जो उर्दू की मोहब्बत लिए हैदराबाद तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए उस नए ज़माने के नई उर्दू को हम सुनने की कोशिश करेंगे। जी, जो इटाली से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अतालिया से उनका ताल्लुक़ है, 26 साल के हैं, डैनियल स्पेजियल। सबसे पहले तो बज़्म सुखन की जानिब से उनका इस्तकबाल है। डैनियल जो इटाली से आए हैं वो यहाँ पर अपना ख़ुद का कलाम पेश करेंगे। मैं डैनियल से ख्वाहिश करती हूँ जो राही इतालवी तखल्लुस करते हैं अपने बारे में कुछ बताते हुए अपना कलाम सुनाए। डैनियल। आदाब सबको और आपके इस्तकबाल के लिए और हैदराबादी मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ होना मेरे लिए बाइस सआदत है क्योंकि अल्लामा इकबाल इतना अहम शायर है, एक शायर है जो मुझे बहुत पसंद है। और अजब इत्तिफाक ये भी है कि अल्लामा इकबाल इटली में सफ़र किया था, वो इटली आया था और इटली के बारे में 2-3 नाज़म लिखा था। तो मैं इटली से आया, मेरा नाम डैनियल है, तखल्लुस राही इतालवी है और मैंने उर्दू शायरी पढ़ते पढ़ते सीखी, खुद से सीखी। अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ते पढ़ते, मिर्ज़ा गालिब की शायरी पढ़ते पढ़ते, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पढ़ते पढ़ते और आज अपना कलाम पेश करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। सबसे पहले इश्क के बारे में एक गज़ल सुनाऊंगा जो बहुत रेलेवेंट मौजू है। इश्क की बात तो बहुत हुई तो ठीक है। एक गज़बनाक सा खुदा है इश्क, एक गज़बनाक सा खुदा है इश्क और मुझसे बहुत खफा है इश्क। एक गज़बनाक सा खुदा है इश्क और मुझसे बहुत खफा है इश्क। कभी आह और कभी अरे कभी वाह, कभी आह और कभी अरे कभी वाह, एक ज़ुबाने बेतरजुमा है इश्क। कभी आह और कभी अरे कभी वाह, एक ज़ुबाने बेतरजुमा है इश्क। कभी एक अजनबी कभी हम तुम, कभी एक अजनबी कभी हम तुम, लाख शक्लें जुदा जुदा है इश्क। ज़ख्म दिल क्या है सोज़ जिगर, ज़ख्म दिल क्या है सोज़ जिगर,
खून अफशानी सर तपा है इश्क, खंजर और तीर दाम और शमशीर, खंजर और तीर दाम और शमशीर, रोज एक तरह की कज़ा है इश्क। जरा ना मुस्कले तो सब समझे, जरा ना मुस्कले तो सब समझे, फारसी हिंदी रेखता है इश्क। और मकतबी है जो मैंने बैठे बैठे लिखा, और मेरा दोस्त जो भी शायर है मेरा इज़ला किया, तो बहुत शुक्रिया। मैं उसको उस्ताद कहता हूँ, वो ये नहीं मानता, लेकिन दश्त है कैस है कि मैं राही, दश्त है कैस है कि मैं राही, और वही बात है कि क्या है इश्क। बहुत शुक्रिया सबको, बहुत शुक्रिया। और अभी एक और गज़ल सुनाऊंगा, इजाज़त हो तो। वज़लत हिजरत एक ही शे है, वज़लत हिजरत एक ही शे है, दिल और दिक्कत एक ही शे है। इश्क में नेको बद को भुला दो, इश्क में नेको बद को भुला दो, आफत बरकत एक ही शे है। और उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि क्या हिंदी उर्दू उतनी अलग ज़ुबान है कि नहीं, ये शेर आपके लिए है। हिंदी उर्दू मैं क्या बोलूं, हिंदी उर्दू मैं क्या बोलूं, चाहत हजरत एक ही शे है। हिंदी उर्दू मैं क्या बोलूं, चाहत हजरत एक ही शे है। आँख में बसते कितने तारे, आँख में बसते कितने तारे, खालिक खलकत एक ही शे है। सोहबत रुखसत एक ही किस्सा, सोहबत रुखसत एक ही किस्सा, कुर्बत फुरकत एक ही शे है। आशिकी मेहनत आशिकी जहमत, आशिकी मेहनत आशिकी जहमत, दिल बरी गफलत एक ही शे है। एक तो दिल है दर्द हजारा, एक तो दिल है दर्द हजारा, इश्क और हिम्मत एक ही शे है। राही राही ही रहता है, राही राही ही रहता है, घर या गुर्बत एक ही शे है। और वक्त हो तो एक और गज़ल सुनाऊंगा। ठीक है, ये बिना पढ़ते सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा। होश उड़ा जोश उठा, दहर फरामोश हुआ, होश उड़ा जोश उठा, दहर फरामोश हुआ, इश्क के आशोब में सब साकी तो खामोश हुआ। बहुत शुक्रिया। खाक हुआ पाक हुआ, सीना भी क्या चाक हुआ, खाक हुआ पाक हुआ, सीना भी क्या चाक हुआ, जज्बे जहां सोच जो आज मेरा हमागोश हुआ। मुर्दा जो था जिंदा हुआ, आतिश ताबिंदा हुआ, मुर्दा जो था जिंदा हुआ, आतिश ताबिंदा हुआ, लाश जो था बंदा हुआ, दिल में नया जोश हुआ। आई है क्या मौज शराब, आज है क्या मंजर ख्वाब, आई है क्या मौज शराब, आज है क्या मंजर ख्वाब, वाइज़ अभी इश्क में है, शेख भी मैं नोश हुआ। और फट के गिरा पर्दाए जां, था जो निहान अब है अयान, फट के गिरा पर्दाए जां, था जो निहान अब है अयान, होश है अब इतने रवां, राही के बेहोश हुआ। और
बहुत शुक्रिया, इतना ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबके। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया डैनियल। मैं हमारी सदर मोहतरम मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज से ख्वाहिश करती हूँ कि वो एक छोटा सा नजराना डैनियल स्पेजियल के खिदमत में पेश करें। इकबाल ने शायद आप जैसों के लिए ही कहा है, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू, अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू, खतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है, खतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। तो अल्लामा इकबाल के शायरी के सेलिब्रेशन के लिए सजी ये शाम डैनियल के अशार पर ख़त्म होती है। तो हम समझते हैं कि इकबाल की शायरी का जो सेलिब्रेशन रखा गया है और इकबाल ने जो अपनी शायरी के ज़रिए मैसेज दिया है कि ख़ुद पर काम करें, इश्क और अमल करें, तो इसकी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डैनियल के रूप में मौजूद है। तो इसी खूबसूरत कलाम के बाद अल्लामा इकबाल की लिए जो सजाई गई शाम वो यहीं इख्तिताम को पहुंचती है। यहाँ पर जो हमारे साथ सदर आज के इजलास के रही हैं मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा जिन्होंने मकाला पेश किया, उनके भी हम ममनून हैं। साथ ही साथ शिकवा जवाब शिकवा के मुंतखब इक़्तिबासात यहाँ डॉक्टर जावेद कमाल और लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब ने पेश किए, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। जनाब ज़हीरुद्दीन साहब ने मुंतखब अशार कलाम इकबाल से पेश किए हैं, उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका भी। और साथ ही साथ बतौर ख़ास जो मेहमान बनकर हैदराबाद आए हैं उनसे और आप सभी से ख्वाहिश करते हैं कि हैदराबादी मेज़बानी का एक बार फिर लुत्फ़ उठाइए। इस प्रोग्राम के बाद डिनर सर्व किया जाएगा, सब एंजॉय कीजिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम के अख्तिताम का मैं ऐलान करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।